before that, I would like to say one thing, that if we talk of neutron, what basically neutron is? Clear? What basically neutron is? क्या भी मेरी वॉइस ठीक है? Yes, sir. Okay. हाँ. So sorry for the network issues. I'm back. So I'm saying that neutron is represented by a symbol either n, or we can say n0 and 1. So that means neutron has a mass of equal to almost 1. Okay, and we can say it is just a symbol of neutron. All you know that neutron was discovered by Chadwick, and the name of the scientist was Sir William Chadwick. The name of the scientist who discovered neutron. He discovered neutron in some year in 1932, and for that he got Nobel Prize in some year, that is in 1935. So Nobel Prize for discovery of electron was given in 1935. Okay, so this is all about discuss on the slide. Yes, it's the network issues here. That's why voice is not sometimes
difficulty. So I am saying that in case of neutron, there are basically one up quacker and two down quackers. अभी क्वार्क्स क्या है या क्वैकर्स क्या है हमारे पास? व्हाट आर दिस क्वार्क्स एक्चुअली? बेसिकली जो हमारे पास न्यूट्रॉन है उसमें आपके पास एक अप क्वार्क है, दो दोनों क्वार्क हैं। तो बेसिकली क्वार्क्स होते क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, और किस तरह से इनका सैंपल किया जाता है। जैसे मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे सैंपल किया जाता है, यहाँ पे मान लो एक अप क्वार्क है और यहाँ पे एक दो क्वार्क है, एक अप क्वार्क, ये दो क्वार्क, इनके बीच में हमारे पास जिससे बाइंड होते हैं। तो ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन का हमारे पास एक आपका कंपोजिशन है। So Sir, your voice is not clear. yes, Yes, sir, your voice is not Yes, clear. sir. So we are not able to hear anything. Okay. Let me again repeat. It is going how it is possible. चलो अभी देखते हैं। Students, please do listen. My voice is doubling. Yes, sir. Okay. Yes, sir. चलो अभी अब ठीक है, अब नहीं आई डबल। तो भाई अब मैं सीधा स्लाइड्स पे आ रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा नेटवर्क में इशू आ रहा है मुझे यहाँ पे, तो होप दैट आप थोड़ा सा देखें इसको। तो भाई I am coming back to the classes, Google classes. So from Google classes, I am sharing the slides, and it is a presentation made by me, and it is regarding the discovery of the neutron. So first of all, you see a page where we have a Sir James Chadwick, and who discovered neutron in 1932, and for which he got Nobel Prize in 1935. So this is the first slide that we have. And what we discuss here, that this is a scientist, and this scientist is actually not a chemist, he's a physicist. Okay, and how we just symbolize neutron, that is by this symbol I have written here already, that is it is we can say resembled by just n and 0 here, and then subscribed by 1. Okay. And all of you know that the mass of the, we can say, neutron, that is almost equal to 1.675 into 10 raised power minus 24 grams, and which is nearly equal to proton. But आपको पता है कि proton का mass जो है, the mass of proton is always greater than the, sorry, neutron is always greater than the proton. तो न्यूट्रॉन का मास जो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली ज्यादा है। अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे मान लो अगर मैंने कहा प्रोटॉन का मास, तो प्रोटॉन का मास कितना भी हमारे पास, तो प्रोटॉन का मास हमारे पास 1.672 है, और उससे थोड़ा ऊपर जाएं तो हमारे पास न्यूट्रॉन का मास आता है 1.675 के पास में, तो थोड़ा नियरली जो हमारे पास बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें रिलेटिव मास की, तो रिलेटिव मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.00866 AMUs,
एटॉमिक मास यूनिट में की बात की जाए। वहीं पे चार्ज की बात की जाए या फिर हमारे पास बात की जाए रिलेटिव चार्ज की, तो चार्ज और रिलेटिव चार्ज दोनों हमारे पास हैं वो 0 हैं। अब ये चार्ज और रिलेटिव चार्ज 0 क्यों आ रहे हैं भाई यहाँ पे, इनके बारे में बताऊंगा मैं जब मैं आपको लास्ट का स्लाइड जो है कंपोजिशन की वो बताऊंगा कि व्हाई दिस चार्ज इज इक्वल टू 0 और रिलेटिव चार्ज इज इक्वल टू 0। दिस इज जस्ट अ रिवीजन ऑफ व्हाट वी कैन से कि हमने ये जो बताया यहाँ पे किस तरह से हम इसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे next is discovery. So you know that for discovery of electron we use cathode ray tubes method. For discovery of proton we use anode ray method or anode we can say ray tubes. And for discovery of neutron what we use concept of radioactivity. What we use concept of radioactivity. इसका कंसेप्ट करें भैया पे, ठीक है। व्हाट दिस रेडियो एक्टिविटी मीन्स कि एक न्यूक्लाई जो है अगर उसको बम्बार्ड किया जाए अल्फा पार्टिकल से, बीटा पार्टिकल से, गामा पार्टिकल से, कोई पार्टिकल से, तो वो न्यूक्लाई या तो ब्रेक करेगी जिसको बोलेंगे न्यूक्लियर फिशन बोलेंगे, तो वो न्यूक्लाई ब्रेक करेगी और कुछ और पार्टिकल्स देगी, उसको बोलते हैं भी हमारे पास रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो जब एक न्यूक्लाई अपनी प्रॉपर्टी से डिसइंटीग्रेट करती है, दैट अंडरगो ब्रेकडाउन, दैट प्रॉपर्टी इनहिबिटेड बाय अ न्यूक्लाई इज नथिंग बट कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन और डिस्क्रिप्शन बाय यूजिंग बम्बार्डिंग विद द पार्टिकल्स। अब यहाँ पे जो हम यूज करते हैं बम्बार्डिंग मटेरियल वो है हमारे पास बेरिलियम। क्लियर? यू नो दैट बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 हमारे पास और एटॉमिक मास 9। तो ये हमारे पास यहाँ पे सोर्स है, ये हमने यहाँ पे सोर्स दिया, इसको बम्बार्ड कर रहे हैं हमारे पास अल्फा पार्टिकल से, हीलियम पार्टिकल। याद रखना भाई अल्फा पार्टिकल को बोला जाता है, व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? तो अल्फा पार्टिकल आर नथिंग बट दे आर हीलियम पार्टिकल, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज हीलियम पार्टिकल्स आर कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स। तो जब अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया, उनको हिट किया बेरिलियम की न्यूक्लियस पे, बेरिलियम की न्यूक्लाई पे, तो क्या हुआ भाई यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि बेरिलियम का न्यूक्लियस कन्वर्ट होता है किसमें? कार्बन में। तो एक नई न्यूक्लाई बनती है, एक नई न्यूक्लाई बनती है जो हमारे पास कार्बन है, और साथ में निकलता है एक न्यूट्रॉन, साथ में निकलता है एक न्यूट्रॉन। अब आप देखो भाई यहाँ पे कैसा हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका 2, 6 टोटल यहाँ पे क्या भी, तो रिएक्टेंट साइड्स पे एटॉमिक नंबर 6 और प्रोडक्ट साइड्स पे भी एटॉमिक नंबर 6, क्योंकि यहाँ पे 6 + 0, तो 6 + 0 6 ही होगा यहाँ पे 4 + 2 = 6, तो दोनों तरफ से बराबर हमारे पास है। वैसे एटॉमिक मास देखते हैं तो भाई यहाँ पे 9 + 4 13 और यहाँ पे 12 + 1 13, तो एटॉमिक मासेस हमारे पास सेम आ रहे हैं यहाँ पे भी। तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक न्यूट्रॉन निकला, और उसी तरह से एक एलिमेंट जो है, एक न्यूक्लाई जो है बेरिलियम का, जब उस पे अल्फा पार्टिकल हमने हिट किया तो वो क्या बना भाई यहाँ पे, वो बन गया हमारे पास यहाँ पे कार्बन, और साथ में क्या निकला, एक न्यूट्रॉन निकला। इसी तरह से एग्जांपल बता सकता हूँ भाई मैं आपको, जैसे मैं सपोज कहता हूँ, बात कहता हूँ बोरान की, तो बोरान कितना भाई हमारे पास, बोरान का नंबर 5 और 11, ठीक है। अगर इस पे मैं अल्फा पार्टिकल हिट करूं, ये रहा अल्फा पार्टिकल हिट किया इस पे, तो क्या बनेगा भाई 5 और 2 7, 7 मतलब नाइट्रोजन, ठीक है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 14, प्लस क्या बचेगा भाई हमारे पास यहाँ पे 5 और 2 7, 7 यहाँ पे इसका 0 होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी 11 + 4 15 एंड यहाँ पे 14, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 1। तो भाई बोरान का जो एटम है, बोरान का न्यूक्लाई है, जब उसको भी हम हिट करते हैं किसके साथ, हीलियम पार्टिकल के साथ, तो वो क्या करता भाई, वो कन्वर्ट करता नाइट्रोजन में, +1 देता है न्यूट्रॉन। तो आप दोनों केस में न्यूट्रॉन देखते हैं, बट चैडविक ने किसको यूज किया था, चैडविक ने यूज किया था बेरिलियम को। यू कैन आल्सो प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ बोरान आल्सो। So this reaction is said to be nuclear reaction, and a nuclear reaction, a nuclei convert into other nuclei when the same nuclei is bombarded with alpha particle or beta particle, and in addition it gives a neutron which is having a mass equal to 1. Okay, so this is what we can say, the nuclei or neutrons are discovered from an atomic nuclei. ये क्लियर भैया आपको? तो Yes, मैंने sir. 2 एग्जांपल दिए, एक तो बेरिलियम का, दूसरा देखो करना क्या यहाँ पे, करना कुछ नहीं, बस एटॉमिक नंबर सम
बराबर होना चाहिए। मास का डिफरेंस अगर यहाँ पे सपोज आपका 13 था तो 30 में से मान 1 निकाल दो, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 12 कर दोगे ना, तो 12 कर दो। और यहाँ पे देखो आपका ना 6 आ रहा है, यहाँ पे तो 6 होना चाहिए, 6 + 0 ये भी हमारे पास। तो भाई आपको ये चीज लानी है, तो आपको उस तरह से तोड़ना की कोई, बट हाँ आपको एग्जाम्पल यहाँ पे कम ही देने, आपको 2 ही देने। नेक्स्ट बात करते भी हमारे पास यहाँ पे, अब ये जब इसने सबसे पहले यहाँ पे डिस्कवर किया, जो ये हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रॉन आए, तो इसके बाद इसने क्या देखा भाई, देखो अगर हमने जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे तो हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं। हमने ये देखा था कि वो फोटोग्राफिक प्लेट को स्ट्राइक करके वहां पे एक येलो कलर का वो ग्लो देते थे। अगर हम एक फील्ड में रखते थे उनको तो वो डिफ्लेक्ट करते थे टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। वैसे हमने जब एनोड रेज को पास किया तो वो डिफ्लेक्ट करती टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी स्प्लिट करते थे वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वो स्प्लिट करते थे, उनसे डिफ्लेक्ट करते थे। बट पहली बार आप ये पढ़ोगे, फर्स्ट टाइम यू विल डिस्कस, अगर इलेक्ट्रॉन था तो डिफ्लेक्ट कर रहा था पॉजिटिव की तरफ, अगर प्रोटॉन था दैट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स नेगेटिव, वी कैन से इलेक्ट्रोड। बट ये पार्टिकल न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन क्या भाई न्यूट्रल पार्टिकल, तो क्या ये डिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से? नो। इसी तरह से क्या ये डिफ्लेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड से? नो। तो भाई सबसे पहली बात की कि जो ये रेडिएशंस थी, ये किस टाइप की रेडिएशन थी यहाँ पे भाई, ये थी पेनिट्रेटिंग टाइप ऑफ रेडिएशंस। और जब इनको पास किया गया, व्हेन दे वर प्रोड्यूस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू affect electric as well as a magnetic field, that means they are neutral. Understand? ठीक है भाई। तो आप इसको हमेशा कंपेयर करोगे कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से और प्रोटॉन के एक्सपेरिमेंट से। So this confirm they are neutral. So these radiations are neutral and these neutral particles are nothing but called neutrons. इनको कहा गया भाई क्या, न्यूट्रॉन्स कहा गया भाई। तो ये आपके पास पहले एक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में। तो इतना सा कंसेप्ट हमारे पास आपने याद रखना है कि बेरिलियम रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज किया, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया, एक नई न्यूक्लियाई बनी, प्लस क्या मिला, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को जब हमने पास किया इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में तो वो डिफ्लेक्शन 0 हो गई हमारे पास, दैट मीन्स वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, और ये न्यूट्रल पार्टिकल्स को बोला गया न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये इसका सिंबल हमारे पास चैडविक ने डिस्कवर किया कितने भाई 1932 में, और उसके बाद नोबेल प्राइज का मिला 1935 में। अच्छा भाई, अब आगे क्या करते हैं, अब आगे थोड़ा सा और आते हैं भी हमारे पास। सो आई एम सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे बार बार ड्रिफ्ट कर रहा है कुछ, तो भाई अब आते हैं हम कहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास रिगार्डिंग other talks that we are mentioning here। तो आप देख रहे थे यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स बने, विजुलाइज बने, और कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो बुक के बाहर हैं। Understand? So I need you to just write what I am writing here. So please make sure that you have a pen and notebook. Otherwise, some things that are not here, they cannot be captured by you. अब सबसे पहले आपने देखो बहुत बार टर्म सुनी मैंने, अगर आपको पढ़ाया बहुत बार बताया आपको मैंने, ये टर्म तो पक्का बताई होगी मैंने, न्यूक्लॉन्स। सबको मालूम भाई, बताई ना मैंने। तो न्यूक्लॉन्स क्या होते हैं भाई हमारे पास? न्यूक्लॉन्स होते हैं, हमेशा याद रखना, इफ यू आर सेइंग न्यूक्लॉन्स, तो न्यूक्लॉन्स आर इक्वल टू न्यूट्रॉन्स, मैं से बताऊंगा थोड़ा सा, प्लस प्रोटॉन्स। मतलब प्लस नहीं, मतलब सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अगर एक एटम के अंदर हमारे पास कलेक्टिवली न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूक्लॉन्स बोलते हैं भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम केमिस्ट्री की जब बात करते हैं तो याद रखना भाई कि अगर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो ये दोनों चेंज करते हैं। मींस कि अगर आपका न्यूट्रॉन है, दैट कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोटॉन एंड प्रोटॉन कैन बी कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन। अंडरस्टैंड? अब सबसे पहले ये बात हमारे पास हम कंफर्म करें कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इंटर कन्वर्टेबल हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन है, प्रोटॉन कन्वर्ट करेगा न्यूट्रॉन में, फिर कुछ समय के बाद न्यूट्रॉन कन्वर्ट करेगा प्रोटॉन में, ये चलता रहेगा भी हमारे पास। सो दिस इज देयर दैट गोज ऑन, दैट मींस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इंटर कन्वर्टेबल। अब सबसे पहले ये मानना भी कि देखो भाई, इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें तो आप कैसे कर सकते हो। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये रहा भी आपका व्हाट वी कैन से न्यूट्रॉन, दिस इज न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट करता है? न्यूट्रॉन कन्वर्ट करता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और वी बार, इसको बोलेंगे यहाँ पे
देखो भाई न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट करता है, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो. व्हाट वी कॉल्ड द लास्ट वन इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो, NEUTRINO. ठीक है. वो जब एक हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट करता प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रॉनों में, इसको बोलते हैं बीटा डिके. तो याद रखना भाई, जब एक हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसमें जो न्यूट्रॉन टूटता है या कन्वर्ट करता है प्रोटॉन में, तो साथ में क्या देता है वो, साथ में इलेक्ट्रॉन देता है, साथ में क्या देता है वो, एंटी न्यूट्रॉनो देता है. तो मतलब ये हुआ, अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करें तो आप ये बता सकते भी कि न्यूट्रॉन ने कन्वर्ट किया एक्स में भी, प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन में प्लस एंटी न्यूट्रॉनों में. तो मुझे बताओ भाई, अगर आपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ लिया तो क्या बना भाई, न्यूट्रॉन इस तरफ इलेक्ट्रॉन आया, तो पीछे क्या बचेगा भाई, प्रोटॉन प्लस क्या देगा वो, एंटी न्यूट्रॉन. वैसे आपने क्या किया, न्यूट्रॉन यहाँ पे लिया, एंटी न्यूट्रॉन इस तरफ लिया, तो अगर एंटी न्यूट्रॉन इस तरफ लिया, पीछे क्या बचा भाई हमारे पास, तो बचा हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. तो ये बता सकते भाई, यहाँ पे यही बताया हुआ है. ठीक है ना. तो आप देख सकते हैं भाई हमारे पास किस तरह से हम बताते हैं. तो जो ये न्यूट्रॉन का ब्रेकडाउन है किसमें, हमारे पास प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन में प्लस एंटी न्यूट्रॉनों में, तो ये क्या भाई हमारे पास, दिस इज नथिंग बट वी कैन से कॉल्ड बीटा डिके. इसको बोलते हैं बीटा डिके भी. ठीक है. तो अभी बीटा डिके पे हम नहीं आएंगे क्योंकि ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट है. भी इतना याद रखें कि भी एक जो जब इंटर कन्वर्जन होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, तो उसके साथ में क्या निकलता है, तो उसके साथ में इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसके साथ में और क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रॉनो निकलता है. तो एंटी न्यूट्रॉनो पार्टिकल हमारे पास निकलते हैं. ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं भाई, जो हमारे पास स्टेबल नहीं होते, तो हम ये बोल सकते हैं कि निकलते हैं. और ये भी आप बात याद रखो कि एंटी न्यूट्रॉनो और इलेक्ट्रॉन को हम बोल सकते हैं मिजॉन्स. क्या बोल सकते हैं दोनों को कलेक्टिवली, मिजॉन्स. So remember, this is also very important that these two are sometimes also called mesons. और ये भी बता दूं भैया आपको, देखो आप यहाँ पे एक और से बता रहा हूं कि ये जो न्यूट्रॉन बेसिकली है, तो न्यूट्रॉन इज क्लासिफाइड अंडर बैरियंस. तो भी बैरियन के अंदर क्या आता है, न्यूट्रॉन आता है. अब ये बोल रहे हैं सर ये न्यूट्रॉन बैरियन क्या बता रहे हो, क्वैकर्स क्या बता रहे हो. तो भाई ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल मैं इलेक्ट्रॉनिक से भी सब इलेक्ट्रॉनिक और उससे भी सब एटॉमिक और सब पार्टिकल में आपको यहाँ पे फिजिक्स बता रहा हूँ, केमिस्ट्री बता रहा हूँ आपको. मैं पहले बता दूं, यू आर लिसनिंग. मैं एक एलिमेंट्री टाइप की सब एटॉमिक पार्टिकल्स की केमिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ, फिजिक्स बता रहा हूँ. बैरियंस, क्वार्क्स, एंटी न्यूट्रॉनो, ये टर्म्स आपको याद रखना. इनमें घुस जाओगे तो कभी समझ नहीं आएगा है क्या. बस इतना याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है और एंटी न्यूट्रॉनो देता है. ठीक है. और थोड़ा बहुत जो हम यहाँ पे जानेंगे वो ये हमारे पास है. तो ये है फैक्ट भाई हमारे पास, जो फैक्ट में बता रहा हूँ आपको. देखो फैक्ट में क्या बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे अगर मैं फैक्ट की बात करूँ, ये लेप्टॉन्स भी होते हैं सारा मालिक, और हमारे पास हार्डॉन्स भी होते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और हार्डॉन्स भी होते हैं. अभी उनकी बात नहीं करें हम. ठीक है. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स और हार्डॉन्स, अभी उनकी बात नहीं करें हम. ठीक है. हाँ, क्वांटम फिजिक्स बोल रहा कोई, भाविका चटगल बोली क्वांटम फिजिक्स. हाँ भाई मैं क्वांटम फिजिक्स ही बता रहा था, बट वो नहीं पढ़ेंगे हम अभी सॉरी टू से अबाउट दिस. बस जितना मैं बोल रहा हूँ उतना पढ़ने के लिए उतना पढ़ो आप. तो अब आते भी कहाँ पे आते हैं, सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट याद रखो एक. तो अब आते भी नेक्स्ट हमारे पास, तो आप नेक्स्ट देख सकते हो भी हमारे पास. तो अब नेक्स्ट हमारे पास से यहाँ पे अब देखो थोड़ा इफेक्ट हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट. आपको नीचे डायग्राम दिख रहा है. तो डायग्राम में क्या, अभी मैं आपको बताऊंगा कि चार्ज जीरो कैसे होता है, ये भी बताऊंगा कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज जीरो क्यों है, और ये क्वैकर्स क्या है, क्वार्क क्या है, क्वार्क क्या है, बेसिकली क्वार्क्स हैं क्या, और एक न्यूट्रॉन में कितने क्वार्क होते हैं, प्रोटॉन में कितने क्वार्क होते हैं, ये भी बताएंगे. तो भाई पहले ये बात डिस्कस करते हैं कि भाई ये रहा हमारे पास न्यूट्रॉन. थोड़ा सा इसको देखिएगा. ये रहा हमारे पास सपोज न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन में एक अप क्वैकर, दो डोन क्वैकर, इस तरह से होते हैं भाई. आप नीचे डायग्राम भी देख सकते हो. ठीक है. ये दो डोन क्वैकर, इनके बीच में फोर्स, मिजोनिक फोर्स. ठीक है. मिजोनिक फोर्स मतलब हड्डी और वी कैन से डॉग, उनके बीच की फोर्स. ठीक है.
तो उनके बीच की फोर्स क्या, वो एक मिजोनिक फोर्स है। कभी मतलब मान लो दो डॉग्स हैं और हड्डी एक है, तो वैसे मान लो अगर आप यहाँ पे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, बीच में म्यूजॉन्स हैं, तो उनके बीच के फोर्स, कभी एक डॉग खींचेगा फिर दूसरा डॉग खींचेगा, तो हड्डी है जो वो मतलब चलती जाएगी। तो जस्ट लाइक म्यूजॉन्स होते हैं बीच में, यहाँ पे ये म्यूजोनिक फोर्सेस होती है हमारे पास यहाँ पे। तो भाई याद रखो न्यूट्रॉन में एक अप क्वैकर, दो डाउन क्वैकर, याद रखो। अभी दूसरी कॉन्सेप्ट, इसके ऑपोजिट प्रोटॉन में, कोई पूछे प्रोटॉन में क्या होता है, ये प्रोटॉन का बता रहा हूं मैं आपको। प्रोटॉन में एक डाउन क्वैकर, दो अप क्वैकर, उल्टा भाई, ये प्रोटॉन में और ये न्यूट्रॉन में, ठीक है। अब क्वार्क्स जो हैं वो क्या है बेसिकली, देखो भाई क्वार्क क्या है। अगर मैं बात करता हूं आप क्वार्क की, तो भाई आप क्वार्क के पास क्या होता है भाई, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और कितना पॉजिटिव, 2/3 आपके पास। डाउन क्वार्क के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और कितना भाई हमारे पास, -1/3। रिमेंबर, सो these quarks are actually positive and negative charge particle together, with up quark having 2 + 2/3 positive charge, we can say, system, and down quark with -1/3 positive charge, negative charge system. Understand? अब थोड़ी सी मुझे बात बताओ भाई, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो इन सब को अलजेब्रिक सम करो, कितने बताए भाई हमने, एक अप क्वार्क बताया मैंने, तो एक अप क्वार्क में क्या होगा भाई हमारे पास, आप देख सकते हो एक अप क्वार्क बताया मैंने, तो भाई 2/3। अच्छा भाई, उसका अलजेब्रिक सम करें, डाउन क्वैकर का भाई 1/3, डाउन क्वैकर का 1/3, तो मुझे बताओ भाई एक बना हमारे पास 2/3, दूसरा बना हमारे पास माइनस, मैं आपको बताऊं तो ये भी बना आपका 2/3 बना, अगर आप देखो तो इसको भी दोनों कैंसिल, तो चार्ज इज इक्वल टू 0। तो भाई कितना चार्ज आया यहाँ पे भी, 0। तो ये किस पे आएगा भाई हमारे पास, ये आएगा आपका न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज। ठीक है भाई, ये समझ आया, नीचे भी सम अप दिया हुआ है, समझ नहीं आया क्या भाई? यस, देखो ना, अब सिंपल समझो। देखो मैंने कहा अब क्वैकर के पास चार्ज +2/3, एक अब क्वैकर है, एक है, दो डोन क्वैकर हैं, उनके पास चार्ज -1/3, दूसरे के पास भी होगा -1/3। अगर सबका अलजेब्रिक सम करें तो टोटल क्या आएगा, 0 आएगा ना। अगर सबका अलजेब्रिक सम करें तो टोटल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये किसमें, न्यूट्रॉन में। अब देखो प्रोटॉन में +1 चार्ज क्यों आता है, पहले देखो प्रोटॉन का बताता हूं आपको। मैंने कहा प्रोटॉन में क्या होता है, प्रोटॉन में दो आते हैं हमारे पास, क्या भाई वहां पे, तो इन केस ऑफ प्रोटॉन देयर आर बेसिकली 1 डोन एंड 2 अप क्वैकर। तो भाई 1 डोन कितना हो गया, डोन का चार्ज होता है भाई कितना, -1/3, आपका +2/3, और दूसरा भी क्या आएगा, +2/3। तो भाई अगर 2/3 +2/3 को अगर हम कहां से करें भाई, -1/3 से करें, तो बताओ भाई टोटल कितना आएगा, 1। यस, तो प्रोटॉन को ऊपर चार्ज 1। आप समझ आए भाई यहाँ पे? तो देखो ये चार्ज कैसे निकाला मैं, हमें बहुत सारे तरीके से निकालते हैं चार्ज को, बस ये प्लस यूनिट चार्ज 1 कैसे आया और हमारे पास 0 चार्ज कैसे आया। तो भाई याद रखना कि किस तरह से हम यहाँ पे चार्ज निकालते हैं। और ये क्वार्क्स क्या है, बेसिकली ये क्वार्क्स आपको समझ आए भाई, आप क्वार्क की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी, तो ये होती है भाई प्लस वी कैन से 2/3 आप चार्ज, और डॉन क्वार्क की जो चार्ज वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -1/3। दूसरी बात करते भी, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे बताते हैं। तो भाई कोई पूछे कंपोजिशन क्या है इसकी, तो ये आपको समझ आया कंपोजिशन हमारे पास क्या है अभी। सो रिमेंबर इट इज 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा भी मैंने कि क्वार्क क्या होता है, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेंशन किया मैंने कि क्वार्क की वैल्यू क्या होती है। कि आप थोड़ा सा इसको अगर जूम करके देखें तो आपको दिखेगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये भाई हमारे पास, तो आप देख सकते हैं कि आप क्वार्क की वैल्यू हमारे पास +2/3 और डाउन की हमारे पास -1/3। अब भाई दूसरी बात करते हैं, न्यूट्रॉन्स जब हमारे पास फ्री होते हैं, फ्री मतलब आइसोलेटेड होते हैं, मतलब मान लो कि अगर न्यूट्रॉन खाली फ्री है, अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है बट न्यूट्रॉन फ्री है, मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन नहीं है, मान लो वहां पे न्यूट्रॉन ही खाली है, तो अगर खाली न्यूट्रॉन है तो वो अनस्टेबल है भी।
और खाली न्यूट्रॉन है तो वो क्या भाई हमारे पास अनस्टेबल है। मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन हमारे पास अनस्टेबल, मतलब कि न्यूट्रॉन हमारे पास रेडियो एक्टिव है, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, वो बार बार टूटते हैं, नए न्यूक्लाई बनाते हैं भाई हमारे पास। और इसी तरह से देखा जाए तो उसका मीन टाइम क्या होगा भाई, उसका मीन टाइम, उसका पूरा मीन लाइफ टाइम जो है, उसका जो पूरा लाइफ स्पेन है ना, वो कितना भाई, ये इतना भाई हमारे पास 881.5 सेकेंड। तो आप देख सकते हो 881.5 second is just the lifetime of, we can say, isolated free, we can say, neutron. Understand? और अगर हम बात करें इसके हाफ लाइफ पीरियड की, अगर रेडियो एक्टिव हमारे पास है तो इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा भाई हमारे पास 10.2। तो 10.2 इसका हाफ लाइफ पीरियड है मिनट में। मुझे यहाँ पे एक चीज आपको बतानी है कि 10.2 कैसे आए भाई हमारे पास, ये तब आएगा जब ये फ्री नहीं होगा। यहाँ पे तब होगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों की बात की जाएगी। उसमें से देखा जाए तो न्यूट्रॉन का जो हाफ लाइफ पीरियड है, हाफ लाइफ मतलब मान लो कि अगर न्यूट्रॉन पूरा तोड़ना है तो पूरा तोड़ने के लिए हाफ टाइम कितना लगता है, मान लो हाफ टाइम लगता है 10.2। मतलब जब ये हाफ टूटेगा 1/2 टूटेगा और 1/2 बचेगा यहाँ पे, तो मतलब उसके लिए जो हाफ टाइम होता है, मान लो जैसे हमारी एज अगर टोटल 50 है तो उसमें हाफ टाइम क्या होगा 25 ईयर्स, तो 25 ईयर्स स्पेंड किए, तो मान लो ये हमारी क्या है हाफ लाइफ पीरियड हमारे पास है। वैसे यहाँ पे भी हाफ लाइफ पीरियड इसकी कितनी बताई भाई, और जब इसकी हाफ लाइफ पीरियड होती है क्या क्या देता भाई, अभी बताया था, ये क्या देता भाई, तो ये देता है प्रोटॉन, ये देता है इलेक्ट्रॉन और ये देता है एंटी न्यूट्रॉन। और जब 3 पार्टिकल देता है हमारे पास तो इसको बोलते हैं बीटा डिके। क्या बोलते हैं इसको भाई, बीटा डिके। नेक्स्ट में यहाँ पे ये बताते हैं कि सभी एटम्स में ऑल एटम्स कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एक्सेप्ट ओनली वन। बताओ भाई कौन सा, वो प्रोटियम। तो व्हाट इज प्रोटियम, H1 दिस इज प्रोटियम। व्हाट इज ड्यूटेरियम 1 2। व्हाट इज ट्राइटम, मैं इनको थोड़ा दोबारा लिखता हूं, व्हाट इज प्रोटियम H1 1, व्हाट इज ड्यूटेरियम 1 2, व्हाट इज ट्रिटियम 1 3। ये क्या है भाई, को बताएगा ये क्या है, यस व्हाट आर दीज, आइसोटोप किसके भाई, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज आइसोटोप, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 1 1, मास नंबर 1 2 3। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटम। तो बताओ भाई यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, तो भाई न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास A माइनस एटॉमिक नंबर Z। 1 - 1 is equal to 0, 2 - 1 is equal to 1, and 3 - 1 is equal to 2. So remember that isotopes are elements, atomic species having atomic number same, different mass number and different नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनको आइसोटोप कहा जाता है। तो यहाँ से हमें आइसोटोप का कंसेप्ट मालूम होता है, और ये भी मालूम होता है कि एक ऐसा स्पीशी हमारे पास है, ये भी पता चलता है कि एक ऐसा हमारे पास एटम है जिसके पास न्यूट्रॉन ही नहीं है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड प्रोटियम। और प्रोटियम किसका भाई, प्रोटियम इज आइसोटोप ऑफ, इट इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ही आइसोटोप हमारे पास है। आप इसको डी लिखो या इसको आप एच लिख सकते हो, इसको आप टी लिखो या एच भी लिख सकते हो भाई हमारे पास, यू कैन आल्सो राइट एच। ओके, तो जरूरी नहीं इसको आप सिंबल चेंज कर आप इस तरह लिख सकते हो। तो ये थी भाई इसकी डायग्राम जो बताई आपको यहाँ पे, तो आप देख सकते हो भाई डायग्राम को बहुत अच्छे से। तो भाई क्या हमारे पास देखो भाई, प्रोटॉन में कितने आपको क्वैकर्स हैं, 2 दिख रहे भाई सबको, यस सर, प्रोटॉन में 2 अप क्वैकर, 1 डाउन क्वार्क, ठीक है। न्यूट्रॉन में 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क, क्योंकि डाउन क्वार्क की वैल्यू -1/3, ठीक है। तो सम करेंगे तो क्या आएगा, न्यूट्रॉन में 0 आएगा, प्रोटॉन में क्या आएगा +1 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे किया भी, तो इसका आएगा टोटल हमारे पास चार्ज, वी कैन से +1, इसमें आएगा हमारे पास 0। तो भाई ये था हमारे पास क्या भाई, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, कुछ पूछना भी इस पे, यस गर्ल्स। तो थोड़ा भाई ये भी याद रखो कि कैसे हमने चार्ज निकाला, हमने नया क्या सीखा, क्वार्क को समझ आया, एंटी न्यूट्रॉनो समझ आया, जो भी हमारे पास कैसे निकलता है। एंटी न्यूट्रॉनो क्या होता है, तो वो भी भाई एंटी पार्टिकल होता है, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल। व्हाट इज एंटी न्यूट्रॉनो, इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ द प्रोटॉन।
भाई नेक्स्ट आते हैं हमारे पास। तो भाई अब नेक्स्ट में आपको यहाँ पे बताऊंगा। सो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज हियर। सो भाई आप देखो, आप मैं यहाँ पे ही नेक्स्ट टॉपिक को क्लिक कर रहा हूँ एंड दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, तो भाई अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आई थिंक इट इज वेरी वेरी स्मॉल, बट चलो इसको मैं ऐसे बता दूंगा आपको। तो भाई सबसे पहले देखो मेरी बात सुनो। अब यहाँ पे अगर देखें हम, तो हमें क्या क्या दिख रहा भाई, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दिख रही हैं, उनकी डेफिनेशन दिख रही है, उनकी प्रॉपर्टी दिख रही है। उसके बाद वेवलेंथ को डिफाइन किया, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया, वेलोसिटी को डिफाइन किया, वेव नंबर को डिफाइन किया, एम्पलीट्यूड को डिफाइन किया और टाइम पीरियड को डिफाइन किया। तो सारे डेफिनेशन सबसे पहले यहाँ पे बताऊंगा आपको मैं कि भाई वेव नंबर को, ये जो है ना, इसका सिंबल वी बार नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, इट इज रेड एज न्यू बार। अंडरस्टैंड? ये सिंबल यहाँ पे नहीं आया क्योंकि वो जब पेज को, वर्ड को हम कन्वर्ट करते हैं इसमें क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट में, तो ये गायब हो जाते हैं जो हमने इंसर्ट किए होते हैं। तो आप देखो यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे रिमेंबर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे आप न्यू बार, रेड एज न्यू बार। न्यू के ऊपर मतलब ऐसे थोड़ा वी टाइप, उसके ऊपर बार लगा दो, तो इसको बोलते हैं न्यू बार बोलते हैं। अभी जितना हमारे पास यहाँ पे टॉपिक्स हैं इनको मैं आपको फिर बताता हूँ। यहाँ पे अब इनके ऊपर देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के होते हैं, उनको डिफाइन करते हैं। वेव लेंथ को डिफाइन करेंगे, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी को करेंगे, इनके बीच में रिलेशन क्या है, किस तरह से इनका मैथमेटिक्स हमारे पास है। तो मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में। देखो अगर आपको डेफिनेशंस पता है, वैसे तो पता ही होंगी, बट फिर भी इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेते हैं, वो यहाँ पे बता रहा हूँ आपको मैं। नाउ लिसन। अब अगर बात होती भाई यहाँ पे किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, क्लियर, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मैं आपको बोलूं, सिंपल से सुना भाई हमारे पास, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हैं? तो आप बोलेंगे सर ये तो रेडिएशंस हैं। तो हाँ सही रेडिएशंस हैं, बट मैं आपसे पूछूं मैकेनिकल टाइप की या नॉन मैकेनिकल टाइप, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज योर आंसर? अगर मैं पूछूं आपसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस टाइप की वी कैन से रेडिएशंस हैं, मैकेनिकल टाइप की और नॉन मैकेनिकल टाइप, तो आप क्या बताओगे आंसर? भाविका चटगल, दे आर नॉट मैकेनिकल, दे आर नॉन मैकेनिकल। ओके, यस। अब ये नॉन मैकेनिकल मतलब कुछ समझ नहीं आया सर? हाँ बिल्कुल नहीं आया सर। तो इसका मतलब ये है, नॉन मैकेनिकल का मतलब ये है कि जब कोई भी रेडिएशन, लिसन, व्हेन एनी रेडिएशन दैट पासेस फ्रॉम वन वी कैन से place to another place, that transmit from one form to another form or one point to another point without any material, without any material medium, that is called non mechanical wave. और अगर कोई वेव ट्रांसफर कर रही है किससे, मैकेनिकल मीडियम से। मैकेनिकल मीडियम क्या है हमारे पास, जैसे आपका वाटर है या फिर एयर है या फिर बोल सकते हैं कोई भी सॉलिड है, वो मैकेनिकल मीडियम है। तो अगर उस मीडियम से पास करी तो उसको बोलेंगे मैकेनिकल वेव बोलेंगे, और उसको हम बोलेंगे कि वो मैकेनिकल वेव है। तो अगर कोई वेव ऐसी है, कोई रेडिएशंस ऐसी है जो पास करती हैं विदाउट हैविंग वी कैन से नेसेसिटी ऑफ material medium, that is called non-mechanical wave, and these are also classified as electromagnetic waves. So first point we declare that they travel, what we discuss, they travel, they do not require any medium. So first point is do not require, I'm writing like this, require any material medium। पहला पॉइंट भी, तो सबसे पहला ये पॉइंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। तो अगर मटेरियल मीडियम से नहीं तो फिर ये क्या चाहिए उनको चाहिए वैक्यूम। दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। सो वेयर they can travel in a vacuum. Okay, so this is the first point. Understand guys this point?
दूसरा पॉइंट, अगर कोई पूछे आपको भाई नेक्स्ट कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां से प्रोड्यूस होती हैं, प्रोडक्शन, हाउ दे आर प्रोड्यूस, तो भाई प्रोड्यूस्ड कहां से होती भाई ये प्रोड्यूस होती भाई दो चीज से, उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन भी या किसी मैग्नेटिक सबस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड में, या फिर बोल सकते हैं किसी इलेक्ट्रिकल सबस्टेंस का मैग्नेटिक फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिकल सबस्टेंस का मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर कोई भी सबस्टेंस चाहे इलेक्ट्रिकल फील्ड हो या उसको उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो अगर वो ऑसिलेट कर रहा है तो मतलब वो क्या शो कर रहा है भाई, अगर वो दोनों शो कर रहा है हमारे पास, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो दैट मींस सिंपल टू से कि when a substance that oscillate within the magnetic field and we can say electric field, that is nothing but we can say they are electromagnetic waves, understand। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड भी इनको इंपैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंपैक्ट कर रहा है, और उसकी प्रेजेंस में ये ऑसिलेट कर रहे हैं, तो मतलब ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। यस, तो अब भाई नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, तो ये भी बोल सकते हैं कि भाई मतलब ये ऑसिलेट करते हैं एट द सेम टाइम। यहाँ पे देखो एक पॉइंट और बता दूं, यहाँ पे होता क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है, आप डायग्राम बता सकते हो यहाँ पे, ये डायग्राम हमारे पास है, और ये हमारे पास है लाइन ऑफ प्रोपगेशन। पता व्हाट इज लाइन ऑफ प्रोपगेशन, कोई बताएगा क्यों? ये एक ऐसी लाइन जहां से वेव ट्रेवल करती है। कोई पूछे व्हाट इज लाइन ऑफ प्रोपगेशन, तो यू कैन से इट्स अ लाइन, और लाइन कोई ऐसी नहीं इमेजिनरी है, एन इमेजिनरी लाइन थ्रू विच द वेव कैन ट्रेवल, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ प्रोपगेशन। अब इस पे ट्रेवल कर, ये ट्रेवल भाई Sir, your voice is not clear. मैं इसको रिपीट करूं ये जो बोला मैंने, या इसको मैं क्या कहूं? Sir, repeat it. So all of you are here? Good. Yes, sir. Yes, sir. Okay. My voice is audible now? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो भी थोड़ा लग रहा मुझे काफी, मे बी सेटिंग में कुछ इसका चेंज कर दिया इन्होंने, तो
So yes, all girls. Hello. हाँ भाई, सबको सुनाई दे रहा? Yes, sir. Yes, sir. मेरे प्रॉब्लम कुछ फोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, सो आई एम कनेक्ट विद माय लैपटॉप, तो अभी थोड़ा सा उसको, तो भाई मैं आपको सिर्फ एक स्क्रीन शो कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन आ रही है मेरी लैपटॉप की? ये नहीं आ रही है, मे बी आ रही होगी। Yes, sir. Sir. ओके, सो आई एम शेयर फ्रॉम हियर। तो मुझे लगता है कि मेरे मोबाइल में करना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पे नहीं आया। Yes, girls, you can question because network issues. Okay, sir. तो टॉपिक कौन सा पढ़ने को